So we'll start today's session with interference of light. Interference of light. हमने already last session में इसके basics देखे हैं. You should know little bit of basics. Basics मतलब what I mean is interference के लिए you should have two or more waves. और यहाँ पे waves मतलब electromagnetic waves of visible range. तो आपके पास दो या दो से ज्यादा सोर्स होने चाहिए वेव्स के. एंड व्हेन द वेव्स फ्रॉम दीज टू सोर्सेस, मैं पैरेलली यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ. सो दिस इज अ स्क्रीन, लेट अस से एक्स वाई. हमारे पास दो सोर्सेस ऑफ लाइट होने चाहिए एंड दीज टू सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी नियर टू ईच अदर. So S1 and S2. So when you have these two sources of light kept very close to each other, very close to each other क्यों होता है? Because आपको जो पैटर्न यहाँ पे देखना है स्क्रीन पे, it should be steady. Steady मतलब with time it should not change. तो हम steady interference पैटर्न की conditions in detail देखेंगे. पहले हम interference in detail देख लेते हैं along with mathematical derivations. तो first of all you should know what is going to happen is आपके पास दो सोर्सेज ऑफ लाइट है और एक स्क्रीन है. सो वेव्स फ्रॉम दीज टू सोर्सेज विल रीच एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन, इनफैक्ट ऑन होल स्क्रीन. तो सम पॉइंट्स विल अपीयर ब्राइट एंड सम विल अपीयर डार्क. ब्राइट अपीयर होना मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना. और आपको पता है हमने लास्ट सेशन में इन डिटेल देखा था कि जब पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा है या फिर 2n लैम्डा बाय 2 है, in short where n starts from 0, right? तो जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी उस पॉइंट पे you will get bright bands. जब पाथ डिफरेंस, किसका पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस ऑफ वेव्स कमिंग फ्रॉम S1 and S2. when the path difference coming from waves from S1 and S2 satisfy this condition n lambda, then the point will appear bright, right? तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये भी बताया था कि सेंटर पे हमेशा ब्राइट बैंड बनेगा बिकॉज सेंट्रल पॉइंट जो होता है वो S1 और S2 से सेम डिस्टेंस पे होता है. दैट इज व्हाई नंबर वन. एंड देयर आर अनदर सम अदर पॉइंट्स जहां पे यू विल गेट, I mean, the path difference from S1 and S2 will satisfy this condition 2m minus 1, yeah, I mean, depends on 2n plus 1 या फिर 2n minus 1 lambda by 2 where m starts from 1. तो जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी those points will appear dark. तो in short we will see all this in detail again. In short, what is happening is, मान लो आपके पास दो सोर्स ऑफ लाइट है एंड बोथ आर इमिटिंग सेम वेवलेंथ. तो यहाँ पे ये भी कंडीशन है दैट both the sources should emit waves of same frequency, मतलब same wavelength, right? Same amplitude, and they should have constant phase difference. तो स्क्रीन पे what you will see is, you will see such kind of pattern, bright dark interference आपको दिखेगा. So I'll just draw this as reference line. Okay, good. Here also I'll draw reference line. Okay, fine. So what you will get is this. ऐसा आपको पैटर्न मिलेगा, bright dark bright dark bright dark. और सेंटर पे ब्राइट बनेगा हमेशा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल you should know this. So in case of light, what is happening? Bright and dark bands are formed when two or more sources of light, मतलब waves, interfere. So in case of light, bright and dark bands are formed in the interference pattern. इसको इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं. इन द इंटरफेरेंस पैटर्न. ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यू नो हमारे पास जब एक सोर्स ऑफ लाइट था तो एनर्जी वाज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड.
इन अ मीडियम जब दो सोर्सेस होंगे तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा. देयर विल बी पॉइंट्स वेयर यू हैव maximum energy and there will be points where there is minimum energy. So this is again another point that you should remember. So here हो क्या रहा है, due to redistribution of light, interference मतलब redistribution of light, there are some points where there is no energy, मतलब the energy will disappear. तो कहाँ appear होगा, bright bands पे. So this is what you need to know. Due to redistribution of energy, due to redistribution of energy, the energy disappears. The energy disappears from the position of minima. Minima मतलब dark band, from the position of dark bands, and reappears, or reappear बोलने better है, and appears at the position of bright band, उसको बोलते हो maxima, and appears at the position of maxima, which you call as bright bands. Good. Is this clear? यहाँ तक clear है. It's very simple thing. तो अब basically as I told you कि इंटरफेरेंस होने के लिए आपके पास कम से कम दो सोर्सेज ऑफ लाइट होने चाहिए और एक स्क्रीन होना चाहिए. So you need to consider two sources of light and a screen. So let us consider two sources of light, S1 and S2, which are placed very close to each other and at a large distance from the screen. Consider two sources of light. S1 and S2 placed very close to each other, and at a very large distance from the screen. Very large distance from the screen. So you can just say large distance also, doesn't matter. Very large मतलब infinite नहीं है वो, it is finite, measurable. So it is at a large distance from the screen. From the screen XY. From the screen XY. Then आगे सेंटर क्या बनेगा, bright. Okay, so क्यों बनेगा bright? Because the distance traveled from sources S1 and S2 is the same. So the waves from the two sources will travel equal distance to reach the center of the screen. Center of the screen. इस स्क्रीन के सेंटर को मैं बोल देता हूं O. So you have some point O over here. The waves from S1 and S2, they are traveling equal distance to reach the center, and hence there is no path difference, and hence the center will always appear bright, and hence a bright band is formed at the center. A bright band is formed at the center. Okay, then ये सेंट्रल पॉइंट छोड़ के कोई भी और एक पॉइंट ले लो. So consider any point P. यहाँ पे लो, नीचे लो, आपकी इच्छा, wherever you want. So consider any point P. This point P will appear bright or dark depending on the
पाथ डिफरेंस। ओके, तो अभी पाथ डिफरेंस अगर n लैम्बडा हुआ तो ब्राइट, अगर 2m-1 लैम्बडा हुआ तो डार्क। तो कंसीडर any point P, on the screen XY. Point P will appear bright, dark depending on the path difference, between the waves. Coming from S1 and S2. मैं इंटेंशनली थोड़ा स्लो जा रहा हूं बिकॉज आगे जाके बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स लगने वाला है, तो यू नीड टू नो एवरी सिंगल थिंग। बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। दो सोर्सेज, एक स्क्रीन, दोनों में से वेव आ रहा है। अगर वेव ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया मतलब 0 पाथ डिफरेंस तो ब्राइट, या फिर कंस्ट्रक्टिव चाहिए तो n लैम्बडा कंडीशन होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव हो तो 2m-1। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन दिया है, बिकॉज व्हेनेवर यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग, क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखना आगे और आई मीन थ्रू आउट योर करियर, चाहे आप किसी एमएनसी में भी जॉब करने जाओगे, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन योरसेल्फ। तुम क्या बोलना चाहते हो? हाँ, इंटरफेरेंस, व्हाट इज इंटरफेरेंस? सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना। किसका इंटरफेरेंस? लाइट का। सो इन केस ऑफ लाइट व्हाट हैपेंस इज इंटरफेरेंस पैटर्न, यू हैव ब्राइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स, राइट? यहां तक हो गया। उसके बाद क्यों ऐसा हुआ, व्हाई ब्राइट एंड डार्क? बिकॉज देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। सिंगल सोर्स होता तो एनर्जी हर जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, बट देयर आर टू सोर्सेस एंड देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो जहां पे डार्क है मतलब एनर्जी वहां पहुंचा नहीं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कहां गया? इट विल अपीयर एट द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा। देन नाउ यू गो इनटू डिटेल। तो पहले होता है ना टैगलाइन, टाइटल, उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, देन यू गो इनटू डिटेल। सो डिटेल क्या था? यू हैव टू सोर्सेस ऑफ लाइट, यू हैव अ स्क्रीन, these two sources should be kept near to each other and sources should be at large distance from the screen. Center will always appear bright. क्यों? क्योंकि S1 से जो वेव आएगा, S2 से जो वेव आएगा, they will travel same distance. Hence point O, that is center of the screen, will always appear bright. Good. अब सेंटर तो ब्राइट है, बाकी कोई भी एक पॉइंट ले लिया वो ब्राइट होगा कि डार्क होगा, इट विल डिपेंड ऑन path difference. Once you have said this, now it is time for us to talk about constructive and destructive interference separately. तो अब आप बोल सकते हो कि यहां तक आपने बता दिया कि S1 और S2 के पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करेगा कि वो ब्राइट है या डार्क है। तो अब वन बाय वन तो हम पहले बात कर लेंगे ब्राइट बैंड की, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। Constructive interference. Now you should say that the point will appear bright. The point P will appear bright if the following conditions are satisfied. If the following conditions are satisfied. Number one, path difference. What is path difference here? Delta. What delta क्या है? S2P minus S1P. Ultimately path difference मतलब क्या? Difference of path traveled by the two waves. तो S2 से जो वेव निकल रहा है उसने कितना पाथ ट्रेवल किया? S2P। और S1 से जो निकल रहा है उसने कितना किया? S1P. So condition number one, path difference which is S2P minus S1P, S2P minus S1P, it should be equal to n lambda. This is condition number one. So the point P will appear bright if the following conditions are satisfied.
या तो पार्ट डिफरेंस इक्वल टू n लैम्डा होना चाहिए, ऑफ कोर्स वेयर n इज नथिंग बट होल नंबर, और डू यू रिमेंबर हम इसी को इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस लिख सकते हैं, याद है मैंने बताया था लास्ट सेशन में, वी हैव स्पेंट 25 मिनट्स टू ओनली टू डू दिस, या तो पार्ट डिफरेंस n लैम्डा या तो फेज डिफरेंस 2n पाई, 2n पाई। हाँ अभी आ गया कांस्टेंट फेज डिफरेंस का पॉइंट यहाँ पे, यू सी मैंने उस टाइम भी बताया था, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। नंबर 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब आई विल राइट डाउन ओवर हियर। जब मैं बोलता हूँ कि जो दो सोर्सेस ऑफ लाइट है, दे शुड इमिट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, मतलब सेम एम्पलीट्यूड एंड हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस या तो जीरो फेज डिफरेंस। तो वो कब, वो तब जब लाइट यहां से इमिट हो रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। अगर यहां से जो वेव इमिट हुआ और यहां से जो वेव इमिट हुआ, इन दोनों में फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वो स्क्रीन पे पहुंचेगा तो फेज डिफरेंस नहीं होगा, तो फिर एवरीथिंग विल बी राइट। व्हाट आई मीन बाय दिस, मेरा सिंपल बोलने का मतलब ये है, जब वेव इमिट हुए तो साइमल्टेनियसली इमिट हुए। दूसरा नंबर ये कि अगर एक वेव का क्रेस्ट S1 ने इमिट किया है तो दूसरा भी उसी टाइम पे क्रेस्ट इमिट करेगा। यहां पे जाके क्रेस्ट और ट्रफ ओवरलैप हो रहा है, क्रेस्ट और क्रेस्ट ओवरलैप हो रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। इंटरफेरेंस कहां हो रहा है, यहां पे हो रहा है इंटरफेरेंस, वेयर ऑन द स्क्रीन। सो फेज डिफरेंस स्क्रीन पे होगा तभी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। So when you say that these two waves must emit waves of same wavelength, amplitude and constant phase difference or zero phase difference, तो जब emit हुए तब। दूसरा, सपोज पहले फेज डिफरेंस था ही नहीं, पहले ने क्रेस्ट इमिट किया, दूसरे ने भी क्रेस्ट इमिट किया, देयर इज जीरो फेज डिफरेंस। ऐसा भी हो सकता है कि पहले सोर्स ने क्रेस्ट इमिट किया तो दूसरे सोर्स ने पहले ट्रफ इमिट किया, इस केस में फेज डिफरेंस कितना है, पाई। एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट आई सेड, ये हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, द फेज डिफरेंस मस्ट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले क्रेस्ट इसका पहले ट्रफ, फिर ये S2 का मूड चेंज हो गया, नहीं अभी पहले मैं क्रेस्ट इमिट करूंगा, इट शुड नॉट हैपन। तो या तो फेज डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए, दे शुड इमिट क्रेस्ट क्रेस्ट टुगेदर, ट्रफ ट्रफ टुगेदर, और इफ वन इज इमिटिंग क्रेस्ट अदर इज इमिटिंग ट्रफ, इट शुड बी ऑलवेज द सेम। तब जाके आपको एक वेल डिफाइंड शार्प स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो यू शुड रिमेंबर दिस, this is very important thing, so I will write it down over here. The waves from S1 and S2 must have same wavelength, amplitude and constant phase difference, constant phase difference जीरो भी हो सकता है। Is this clear now? तो constant phase difference कहां पे, when the waves are emitted, not at the screen. If you say on the screen phase difference is constant, खत्म, सारा का सारा bright, nothing, no dark bands will be obtained, या तो फिर always dark, no bright bands will be obtained. Then तो अब when you talk about constructive interference, या तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, या फिर फेज डिफरेंस, किसका फेज डिफरेंस, ऑफ द वेव्स, कहां पे स्क्रीन पे, उस पॉइंट पे जहां पे हम चेक कर रहे हैं। नंबर 2, और फेज डिफरेंस between the waves must be, phase difference must be 2n pi,
n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये 2n पाई क्यों आता है ये भी हमने इन डिटेल देखा था। इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको बोला है अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट पॉइंट चाहिए तो क्रेस्ट ऑफ वन वेव शुड मैच विद ट्रफ ऑफ, वेरी गुड, क्रेस्ट ऑफ वन वेव शुड मैच विद क्रेस्ट ऑफ अनदर। तो ये क्रेस्ट है तो आपके पास अगर पहले वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का क्रेस्ट ये दोनों मैच हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव। तो जीरो, इफ n इक्वल टू 0 फेज डिफरेंस इज 0। या फिर दूसरा वेव एक राउंड कंप्लीट करके आया मतलब 2 पाई एंगल कवर करके आया मतलब वापस से एक बार क्रेस्ट का मैचिंग होगा मतलब वापस से कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, पुट n इक्वल टू 1 यू गेट 2 पाई। और एक चक्कर 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, तो इन जनरल 2n पाई। तो these are the conditions to obtain कौन सा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट पॉइंट। तो या तो आप कंडीशंस लिखो इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस या आप कंडीशन लिखो इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। ये हो गया कंस्ट्रक्टिव का। अब बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव की। लेट अस टॉक अबाउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Destructive interference, then the point P will appear dark if the following conditions are satisfied. So the point P will appear dark. ये point P dark कब दिखेगा? तो following conditions, number 1 path difference डेल्टा कितना होना चाहिए? यहाँ पे आपने कैसे लिखा n लैम्डा, तो S2P minus S1P it should be equal to 2m minus 1 lambda by 2 where m starts from 1 here, 1 2 3 and so on so forth, right? और आगे जाके हम एक्चुअली प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 लेने वाले हैं। अभी टेम्पररी एट दिस स्टेज it is okay just to take 1 2 3 only positive integers, right? बाद में हम नेगेटिव भी लेंगे। वैसा क्यों लेंगे? I'll tell you now। ऐसा है, मान लो ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, राइट? सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे क्या होगा? ब्राइट। ये स्क्रीन का सेंटर है, ये जो आप स्ट्रिप देख रहे हो ना, ये पूरा स्ट्रिप, ये जो लाइन ड्रॉ की है, दिस लाइन, दिस इज स्क्रीन। Imagine this is center of the screen. Imagine. अब मुझे पता है ये थोड़ा अनइवन है, इस साइड भी होना चाहिए, ठीक है, I agree, but anyways, just imagine this is center of the screen. Center of the screen क्या होता है? Bright. उसके बाद दोनों साइड पे मतलब प्लस साइड पे और माइनस साइड पे डार्क, फिर प्लस साइड पे फर्स्ट ब्राइट और अपोजिट साइड पे नेगेटिव साइड पे फर्स्ट ब्राइट, then second dark and second dark, then second bright and second bright। तो ये दोनों साइड पे होगा। इसके लिए बाद में जाके हम लोग प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, और वैसे भी ये तो आप इसको ऐसा देख रहे हो, ये पैटर्न, दिस पैटर्न कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल। तो ऐसा भी ये पैटर्न बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो हैव like this, ऐसा वर्टिकल भी बन सकता है। तो you can say कि प्लस वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस में सिमेट्रिक होगा, मतलब ये अगर सेंटर है तो ऊपर भी बनेगा नीचे भी बनेगा। सो दैट इज वाई आगे जाके हम प्लस माइनस 1 लेंगे, लेकिन वो बाद में। अभी फिलहाल वी आर गुड विथ ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। गुड। देन और ये तो पहला कंडीशन था पार्ट डिफरेंस का, और फेज डिफरेंस मस्ट बी, और फेज डिफरेंस मस्ट बी, यू नो, इफ यू रिमेंबर ये आया था 2m minus 1 पाई। ये ऐसा क्यों आया था? क्योंकि आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मैच होना चाहिए,
मतलब इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन शुड बी पाई। एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मैच हो रहा है, या फिर इसको चक्कर घुमा के लाओ और पाई प्लस 2 पाई 3 पाई, या फिर और एक राउंड 5 पाई। तो दिस इज व्हाट यू शुड हैव। तो इसके लिए इफ यू पुट m इक्वल टू 1, put m equal to 1, you get 2 into 1 मतलब 2 minus 1 सिर्फ pi। if you put m equal to 2, 3 pi, so where m is 1 2 3 and so on so forth। यहां तक क्लियर? इतना अगर क्लियर है तो आगे का कुछ समझेगा। इज दिस क्लियर? यस, गुड। अब गोइंग बैक टू दिस डायग्राम, अभी तक हमने मैथमेटिक्स को टच कहां किया? हमने सिर्फ थ्योरेटिकली बताया। हमने क्या बताया कि S1 S2 से जो वेव्स आएंगे वो P पॉइंट पे पहुंचेंगे, P ब्राइट होगा अगर दोनों का पार्ट डिफरेंस n लैम्डा या फिर फेज डिफरेंस 2n पाई। P पॉइंट डार्क होगा अगर दोनों वेव्स का पार्ट डिफरेंस 2m-1 लैम्डा बाई 2 और 2m-1 पाई, फेज डिफरेंस शुड बी 2m-1 पाई। सो इन रियलिटी एज यू नो, यहां से वेव इमिट हो रहा है। अगर यहां से वेव इमिट हो रहा है तो इस वेव का कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होगा। डू यू रिमेंबर इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव? a sin of something, you can write a sin of omega t, okay, you can write a sin of omega t plus phi 1, okay, right? तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। आई विल से ये जो वेव है इसका इक्वेशन है a sin of omega t, ओके, दिस इज वेव। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये इक्वेशन है। और आपको पता है ट्रांसवर्स वेव इज नथिंग बट अ सिंपल हार्मोनिक वेव। तो जो वेव सिंपल हार्मोनिक मोशन का वही इक्वेशन इस वेव का। सो इक्वेशन ऑफ SHM एंड इक्वेशन ऑफ वेव विल बी द सेम, करेक्ट? अब नाउ मैं वापस बता रहा हूं, आई नो वेयर इज योर कंफ्यूजन। आप हमेशा सोचते हो फिर ये y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस फाइव या प्लस फाइव का क्या था? फिर जब आप दो वेव को कंपेयर करते हो तो दोनों वेव में फेज डिफरेंस हो सकता है। तो ये फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। तो ये y2 a2 नहीं लिखूंगा। चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं, राइट? तो एक जनरल इक्वेशन बना लेंगे, फिर बाद में एम्पलीट्यूड सेम कर देंगे। तो व्हाट आई विल डू इज फॉर द टाइम बीइंग, यहां मैंने लिखा है दैट दे मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड, मैं यहां से हटा देता हूं उसको फॉर द टाइम बीइंग, राइट? फिर बाद में हम कर लेंगे एम्पलीट्यूड को सेम। तो आपके पास दो वेव्स है, दो वेव्स में एक वेव है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t, दूसरा वेव है y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव, वेयर फाइव इज द फेज डिफरेंस। मतलब जब दो वेव्स इमिट हुए तब इसमें कुछ फेज डिफरेंस था, नहीं होगा तो ये जीरो, होगा तो फाइव। तो यहां से जो दूसरा वेव निकल रहा है, सेकेंड वेव, ये भी इस पॉइंट पे आएगा, p पॉइंट पे, राइट? Good. So let us say, consider two waves, या फिर waves from S1 and S2 are given by, consider waves from sources S1 and S2 are given by, पहला वेव है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t, दूसरा है y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव। यहां तक क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर? पक्का? ऑल गुड? कुछ नहीं है, दो वेव्स है, एक वेव का इक्वेशन a1 साइन ओमेगा t, दूसरे का a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव। When these two points reach at a point simultaneously, स्क्रीन पे एक पॉइंट पे P पॉइंट पे एक साथ पहुंच गए, क्या होगा? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यू नो
So when these two waves reach at a point on the screen simultaneously, when these two waves reach at a point P on the screen simultaneously, then according to principle of superposition, अगर आपको याद होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट इज वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द टू वेव्स, मतलब y इक्वल टू y1 प्लस y2, बट y1 is a1 sin omega t plus y2 is a2 sin omega t plus phi, राइट। अब आप चाहो तो इसको साइन ऑफ a प्लस बी यूज करके साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी पूरा लिखने के बाद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, विच इन्वॉल्व अराउंड 7 to 8 स्टेप्स। पर जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपको पता है हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले ही करके रखा है। इफ यू रिमेंबर सुपरपोजिशन ऑफ वेव में हमने किया था और हमने बताया था कि ये जो रिजल्टेंट है इट इज अगेन अ सिंपल हार्मोनिक वेव with resultant amplitude s are equal to under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi1 minus phi2, लेकिन यहाँ पे हमने phi1 को 0 लिया और phi2 को phi लिया है, तो cos of phi तो करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है we know that the resultant is also a simple harmonic wave with resultant amplitude equal to under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi। क्लियर यहाँ तक? Where phi is phase difference between the two waves, where phi is phase difference between the two waves, right? Phase difference between the two waves is important. Then अब क्या करें? What will you do now? अब आप बोलोगे obviously amplitude, ये amplitude है R and you know इंटरफेरेंस पैटर्न में ब्राइट डार्क ऐसा कुछ दिखता है। ब्राइट दिखता है मतलब इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, बट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो we know that intensity is directly proportional to square of amplitude, Therefore, resultant intensity at point P, resultant intensity at any point on the screen बोल सकते हो, बट यहाँ पे हम P point की बात कर रहे हैं, इसलिए P point at point P is resultant intensity IR, resultant intensity। ये इंडिविजुअल सोर्स का इंटेंसिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो सोर्सेस है, दोनों सोर्स का अपना अपना एनर्जी, अपना अपना एम्पलीट्यूड है। तो पहले सोर्स का इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर, दूसरे सोर्स का जो एम्पलीट्यूड है वो है a2, तो इंटेंसिटी ऑफ सेकंड सोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू a2 स्क्वायर। वो हम बाद में देखेंगे। अब फिलहाल लेट अस टॉक अबाउट पॉइंट P। तो
you should know resultant intensity is proportional to resultant amplitude का square, resultant amplitude का square. So therefore resultant intensity IR is proportional to this A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos of phi. ये आ गया आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी, करेक्ट, राइट. तो जैसे आपने यहां पे पहले बताया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब पार्ट डिफरेंस n लैम्बडा होगा, फेज डिफरेंस 2n पाई होगा. तो वापस आपके पास अब इंटेंसिटी का इक्वेशन है. सी द आइडिया हियर इज, जहां पे ब्राइट पॉइंट्स है, ब्राइट बैंड्स है, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और आपको पता है कि पार्ट डिफरेंस n लैम्बडा, फेज डिफरेंस 2n पाई. इसका मतलब ये भी तो है कि उस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है. इंटेंसिटी मैक्सिमम है इसलिए तो ब्राइटेस्ट है. इज दिस क्लियर? तो अब आप वापस से बोल सकते हो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हाट विल बी द कंडीशन. सो यू कैन से फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा और वहां पे इंटेंसिटी क्या होगा. सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस what you will have is, so you know that for constructive interference what is the value of phi. So for constructive interference, ci matlab constructive interference, value of phase difference should be 2n pi. Very good. Therefore cos of phi, क्यों cos of phi? क्योंकि यहाँ पे cos है, इसके लिए cos of phi. तो cos of phi is cos of 2n pi. And you know this is n की वैल्यू 0, cos 0, फिर 1 cos 2 pi, फिर 2 cos 4 pi, फिर 3 cos 6 pi. तो cos of 0 is 1, 2 pi is 1, 4 pi is 1, 6 pi is also 1. तो ये इन जनरल आएगा 1. तो cos phi आपको मिल गया 1, right? But for constructive interference, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, but for constructive interference the point appears bright, the point appears bright, which means intensity is maximum, which means intensity is maximum. इसके लिए अब आप आई आर की जगह पे लिखोगे आई मैक्स. रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम. तो आई मैक्स में आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्लस 2A1 A2 और cos phi की वैल्यू है 1. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम और आई मैक्स is proportional to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2, मतलब A1 plus A2 bracket square, मतलब resultant intensity is A1 plus A2 bracket square. Correct? Good. बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल टॉपिक है. Only thing is basics. Then destructive interference. ये destructive interference. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको याद होगा, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस होना चाहिए 2m minus 1 pi, मतलब pi 3 pi 5 pi 7 pi 9 pi so on so forth. तो 2m minus 1 pi what is, अगर मैं पहला वैल्यू लेता हूं m equal to 1, I have pi. तो what is cos pi? minus 1. What is cos of 3 pi? minus 1. 5 pi minus 1. So in general cos of 2m minus 1 pi is minus 1. तो ये आएगा आपका in general minus 1, right? So therefore as you know for destructive interference the point appears dark, which means the intensity at that point is minimum. So but for destructive interference the point appears dark.
which means the intensity is minimum. The intensity is minimum, right? Good, simple. इसका मतलब I max नहीं लिखोगे, अब आप लिखोगे I min. So therefore I minimum is proportional to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 into -1. Therefore minimum intensity is proportional to A1 square plus A2 square minus 2A1 A2. Therefore you have I min as proportional to A1 minus A2 bracket square. Correct? अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड. गुड. नाउ देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि क्या होता है, अब तक हम बोल रहे हैं कि या तो ब्राइट दिखेगा या तो कुछ भी नहीं होगा. ऐसा नहीं होता है. ऐसा क्यों नहीं होता है? बिकॉज अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो ऐसा नहीं होता. See, if you have two waves, हमारे पास ये एक वेव है यहाँ पे. So I have one wave something like this. अगर दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड भी सेम हो गया और दोनों अगर इन फेज है, तो इस केस में जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यू विल हैव एम्पलीट्यूड एज 2a, है ना? देखो ये लिखा है कहीं पे हमने A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर. वो इंटेंसिटी है, एम्पलीट्यूड नहीं. एम्पलीट्यूड क्या है? ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और cos फाई 1 आएगा क्योंकि कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहा हूं मैं. तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a वापस 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर ब्रैकेट रूट से स्क्वायर रूट से बाहर 2a. करेक्ट? यस. नाउ if I have second wave exactly of the same amplitude and out of phase, 0, complete cancellation, right? तो यहाँ पे सीधा सीधा आप देखोगे, अगेन हियर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये -1 था, तो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज 0, नथिंग. सो एग्जैक्टली डार्क बैंड. या तो एनर्जी है या तो नहीं है. बट रिमेंबर, हमने स्टार्टिंग से ही बोला है कि फिलहाल सेम एम्पलीट्यूड मत लो, बाद में देखेंगे सेम एम्पलीट्यूड. अब अगर सोचो कि ऐसा होता, ओके, अगर ऐसा होता जिसमें आउट ऑफ फेज तो है लेकिन एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, एग्जैक्ट कैंसलेशन होगा? नहीं होगा. एग्जैक्ट कैंसलेशन नहीं होगा. तो इन दिस केस you will get resultant something like this. Okay? हाँ, तो अब of course यहां पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है और यहां पे कहां पे पता नहीं कहां पे. तो there are some points where you have थोड़ा brightness है, so there is intensity, and there are points where you have faint. So अब what you have to do is the ratio of maximum to minimum intensity. So you need to check what is the ratio of maximum to minimum intensity. या फिर आप इसको और एक तरीके से समझ सकते हो, ratio of maximum to minimum intensity. इसको और एक तरीके से समझना मतलब ये, अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं होंगे तो ये जो पैटर्न है, दिस पैटर्न, राइट? तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी के पॉइंट्स हैं. मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, यहां पे कितना इंटेंसिटी और मिनिमम पे कितना इंटेंसिटी? बिकॉज एज आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली सेम नहीं है तो जहां जहां डिस्ट्रक्टिव होगा वहां पे टोटल डार्क तो नहीं होगा, यू कैन हैव लिटिल बिट ऑफ इंटेंसिटी, राइट? और जहां जहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा इट विल बी द ब्राइटेस्ट, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी. तो देयर इज सम रेशियो.
हम पूछ सकते हैं ना व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, राइट? अगर मैं बोलता कि एग्जैक्टली एम्पलीट्यूड सेम है, एग्जैक्टली एम्पलीट्यूड सेम है, तो मिनिमम इंटेंसिटी इज 0, राइट? फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालोगे ही कैसे? नहीं निकाल सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आएगा. एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी. So that is why you need to remember, you talk about maximum intensity or minimum intensity only when, in this case, amplitudes are not same exactly. So number one, ratio of maximum to minimum intensity. So you already know Imax क्या है, Imean क्या है. So therefore, Imax by Imean is Imax is A1 plus A2 bracket square. So it is A1 plus A2 bracket square upon this is A1 minus A2 bracket square. So therefore Imax by Imean is equal to, दोनों का ब्रैकेट को कर लेंगे कॉमन, स्क्वायर को कर लेंगे कॉमन, A1 plus A2 upon A1 minus A2 ब्रैकेट स्क्वायर. देन अब एक काम करते हैं, इसमें से A2 को कॉमन निकालते हैं. इफ आई टेक A2 कॉमन, पहली टर्म में आएगा A1 by A2, दूसरे में आएगा जस्ट 1 अपॉन A2 कॉमन, देन यू हैव A1 by A2 minus 1 और इसका स्क्वायर. ये हो गया कैंसिल. ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो A1 by A2 है इसको बोलते हो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स. तो समटाइम्स इन एग्जाम they will tell you ratio of amplitudes, क्योंकि as I told you, या तो ratio of intensity या ratio of amplitude. आप कैसे बोल सकते हैं ratio of amplitude of two waves coming from two sources is 2:1. Find out what is the ratio of maximum to minimum intensity. तो ratio of amplitude मतलब always A1 by A2, उल्टा नहीं, A2 by A1 नहीं, it is always A1 by A2. तो अगर वो 2 दिया है तो 2 plus 1 3 upon 2 minus 1 1, 3 square 9. तो अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो 2:1 है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो 9:1 है. तो ये जो A1 by A2 है इसको हम बोलते हैं R. तो दिस इज कॉल्ड एज R plus 1 upon R minus 1 का square, where R is ratio of amplitudes A1 and A2, where R is nothing but A1 by A2. Clear यहाँ तक? तो you should always remember ratio of amplitude is A1 by A2, not A2 by A1. So therefore you have ratio of maximum to minimum intensity in terms of ratio of amplitudes. Okay, so लिख देते हैं यहाँ पे रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड. तो सो फार आज हमने क्या किया, जस्ट अ क्विक समरी. हमने आज वापस से इंटरफेरेंस के बेसिक आइडिया देखे. हमने बेसिक आइडिया मतलब दो सोर्सेस होने चाहिए, और दो सोर्सेस जब एक स्क्रीन पे, मतलब दो सोर्सेस में से जो वेव निकल रहे हैं S1 and S2, जब वो स्क्रीन पे अलग अलग पॉइंट पे आएंगे तो डिपेंडिंग ऑन द फेज डिफरेंस द पॉइंट्स विल ईदर अपीयर ब्राइट और डार्क. सो डिपेंडिंग ऑन फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो एज यू नो कि सेंटर पे तो ब्राइट ही होगा, तो हम सेंटर छोड़ के ही बात करते हैं. वी जस्ट डोंट टॉक अबाउट सेंटर बिकॉज हमको पता है कि सेंटर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ब्राइट. और उसका एक प्रूफ भी है हमारे पास. कौन सा प्रूफ है? अगर आप देखोगे, आपने जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की, so when you talk about constructive interference here you say delta n lambda, मतलब S2p minus S1p equal to n lambda if you put n equal to 0, मतलब पार्ट डिफरेंस 0. this is the central point, right? तो फिर n equal to 0 corresponds to central bright band, right? सेंटर पे ब्राइट होगा n equal to 0, n equal to 1 मतलब फर्स्ट ब्राइट, n equal to 2 मतलब सेकंड ब्राइट. तो इसको जीरोथ ऑर्डर ब्राइट बैंड बोलते हैं सेंटर को, जीरोथ ऑर्डर. देन n equal to 1 इज फर्स्ट ऑर्डर, n equal to 2 इज सेकंड ऑर्डर. तो ये हमको पता है ऑलरेडी. तो इसलिए हमने क्या किया कि वो पॉइंट को छोड़ के कोई और पॉइंट ले लिया P. देन
ऑब्वियसली हमने कंडीशन स्पेसिफाई कर दिए कि कंस्ट्रक्टिव के लिए ये या फिर ये दोनों में से एक, डेल्टा एन लैम्डा और फेज डिफरेंस 2n पाई। और डिस्ट्रक्टिव के लिए हमने बोला कि 2m -1 लैम्डा बाय 2 या फिर फेज डिफरेंस होना चाहिए 2m -1 पाई। देन हमने जो वेव्स यहां से इमिट हो रहे हैं उसके वेव इक्वेशन के टर्म में लिखा। तो वी wrote down in terms of wave equation y1 equal to a1 sin omega t। आप प्लस phi1 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आई प्रिफर टू डू इट दिस वे, a2 sin ऑफ ओमेगा t प्लस phi। दोनों में फेज डिफरेंस बताना है। यहाँ पे phi1 यहाँ पे phi2 लिखोगे तो फिर फेज डिफरेंस विल बी phi1 माइनस phi2, या फिर यहाँ पे जीरो लिखो तो फेज डिफरेंस डायरेक्टली phi। तो यू हैव टू वेव्स ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड इनिशियली, सेम एम्पलीट्यूड बाद में करके देखेंगे। हम इक्वल एम्पलीट्यूड की बात कल के लेक्चर में करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of phi। then intensity at a point is proportional to square of amplitude, मतलब it is proportional to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2। फिर हमने देखा ऑफ कोर्स cos ऑफ phi। फिर हमने देखा मैक्सिमम इंटेंसिटी जब फेज डिफरेंस होगा 2n पाई, इट इज प्रोपोर्शनल टू a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब a1 माइनस a2 स्क्वायर। फिर हमने इसका रेशो निकाला और उसको लिखा इन टर्म्स ऑफ रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड रेशो। सो दैट्स इट फॉर टुडे।